Jesus Christ. यीशु मसीह के सुंदर नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। Greetings to you in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के सुंदर नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। We welcome you for the morning intercession and prayer word 2020. और हम ये सुबह के मध्यस्थी प्रार्थना 2020 में आपका स्वागत करते And हैं। thank you for Pastor M.K. Jadhav made it possible that we can come through his page and pray for the nation of the world. और पास्टर जादव को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये पेज के द्वारा हमें ये मौका दिया कि हम आकर यहाँ पर प्रार्थना कर सके आपके साथ में। And we believe that God will speak to us. और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमसे बोलेंगे। And we believe that the work of the Holy Spirit will be evident today afterwards. और पवित्र आत्मा के कार्य आज दिखाई देंगे। Amen. So before we start this session of prayer and word, we will pray. प्रार्थना की शुरुआत ये सेशन को शुरू करने से पहले आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। Amen. Let's begin with the word of prayer. आइए प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं। Loving Heavenly Father, प्यारे स्वर्गीय पिता, we come to you in the unfailing name of our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के अटल न होने वाले नाम में हम आपके सामने। Your word says, O Lord, call unto me, I will answer thee and show you great and mighty things that you know not. प्रभु आपका वचन कहता है मुझसे प्रार्थना करो और तुझे मैं बड़ी और कठिन चीजों को मैं दिखाऊंगा। Lord, in the midst of all these circumstances, we the church of the body of Christ, we come together and we intercede to see the marvelous miracles hand of Jesus Christ upon our nation. प्रभु ये सारे परिस्थितियों के बीच में प्रभु हम मसीह के देह होने के रूप में हम इकट्ठे हुए हैं प्रभु आपको की खोज करने के लिए पिता। Lord, thank you for the media sources where we can reach and pray, Lord, and intercede before you for the prayers to be answered. प्रभु मीडिया के लिए धन्यवाद देते ताकि एक साथ में एक सूत्र है जिसके द्वारा हम मिल सकते हैं दूसरे के साथ में प्रार्थना कर सकते हैं। And Lord, we believe that Lord, your hand will come upon our nation as we intercede. और प्रभु हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि जैसे हम मध्यस्थी प्रार्थना करेंगे प्रभु आपका हाथ हमारे देश के ऊपर उतर आएगा। Moses interceded before you, Lord. प्रभु मूसा ने तेरे सामने मध्यस्थी की। Abraham interceded before you. अब्राहम ने मध्यस्थी प्रार्थना की। Jesus, you yourself are interceding for us. और यीशु आज हमारे लिए मध्यस्थी अभी भी कर रहे हैं। And Lord, we believe, Lord, when your word is inside us and we inside you, whatever we pray, you will grant all our answers, O God. प्रभु हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि जब आप हम आपके अंदर है बसे हैं और जो भी प्रार्थना हम करेंगे और आपका वचन जब हमारे अंदर जो भी हम मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। This morning, Lord, little bit worship, little bit word and prayer. Father, manifest your presence. प्रभु आज सुबह को थोड़ी आराधना थोड़ा प्रार्थना करेंगे थोड़ा वचन देंगे सब चीजों में प्रभु तेरी स्तुति हो। And Father God, we believe that, Lord, the people who are suffering from corona or any other diseases, oh Lord, it will vanish through the prayer of intercession. और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि जो भी लोग बीमारी से ग्रस्त है या कोरोना से ग्रस्त है प्रभु आज सुबह को जैसे हम प्रार्थना करेंगे वो सारी चीजें गायब हो जाएंगी। Every weapon of the devil we command it to fall down in the name of Jesus. शैतान के जितने भी षड्यंत्र हैं तुझे आज्ञा देता हूँ We arrest the works of the enemy in the name of Jesus. शत्रु के हर एक कामों को हम बांधते हैं यीशु के नाम में। Lord, we pray that, Lord, your healing hand will come upon the people who are lying with difficult situation of sickness in their bodies and heal them completely, Lord. प्रभु जो लोग बीमारी स्थिति में ग्रस्त हैं पिता हम विश्वास करते हैं कि आपका चंगाई का हाथ हर एक के ऊपर आएगा और उनके शरीरों को चंगाई दे यीशु के नाम में। Lord, we begin this service in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम तुझे धन्यवाद देते हैं। Come, Lord Jesus. पिता तू आ Minister to us, Holy Spirit. पवित्र आत्मा तो हमारी अगुवाई कर। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Before we go into the word and the intercession for some time, वचन में जाने से पहले और मध्यस्थी में थोड़े समय जाने से पहले I request my daughter to come and lead us in one song. और मेरी बेटी अभी आएगी एक दो गाने में हमें चलाएगी। Okay. भजन संहिता 103 कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है
वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वह तो तेरी सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आइए परमेश्वर को, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? हमारे धन्यवाद का भेंट हम चढ़ा सकते हैं उसे। हर इतने विश्व में लोगों के अंदर हम देखते हैं कि आशा नहीं है, लोग इतने बेचैन हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, काफ़ी लोग चिंतित हैं, पर हमें एक आशा है हमारे प्रभु में कि वो हमें न कभी छोड़ेगा न त्यागेगा। आइए उन सारी बातों को याद करते हुए, उसने जितने भी उपकार हम पर किए हैं, उस बात को याद करते हुए आज प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी महिमा गाएंगे इस गीत के द्वारा। प्रभु से कहेंगे शुक्रिया प्रभु, हम तुझे क्या दे सकते हैं? सारी दुनिया तेरी है प्रभु, सब कुछ तूने रचाया है पिता परमेश्वर। हम तुझे सब चीज़ों के लिए धन्यवाद, हमारी रक्षा के लिए, हमारी चंगाई के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तेरी करुणा हर दिन हम देखते हैं, हमें भोजन पानी सब कुछ आपने दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस गीत के द्वारा अपने पूरे हृदय से आइए प्रभु की महिमा करते हैं। क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही करता शुरू हर कोई का, शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हर एक सारी दुनिया के लिए प्रभु, सब कुछ तूने रचाया है पिता, हमको भी तूने रचाया है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी है सब कुछ तूने रचाया है, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। मैं क्या आ सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। आइए सब अपनी आवाज उठाकर, क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया।
आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ये लॉकडाउन जल्दी से तू खत्म करा। शुक्रिया प्रभु, हम जल्दी से गलीचे खुल रहे। धन्यवाद प्रभु। सब और विश्वास के साथ प्रभु के वचन के विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी पे विश्वास कीजिए कि कलीसियां खुल रही है, आराधना शुरू हो चुका है। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और अवसिका तारामा शांतो रोगो शिवा रखता दिखारामा शांतारा। आइए शुक्रिया for the last time। शुक्रिया, worship you, Jesus. शुक्रिया, Glory to Jesus. शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। इससे सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा दिया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया यीशु। प्रभु क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 Yes, Lord. शुक्रिया Glory to Jesus. यीशु तेरा। Yes, let us pray. Let us pray. Hallelujah. धन्यवाद पिता, ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तू महान, महान, महान है पिता। स्वर्ग तेरा सिंहासन है और पृथ्वी तेरी पैरों की स्थान। ओ हालेलुया। Come on, everybody. Join us in worship and prayer. Hallelujah. Hosanna, Hosanna, प्रभु, Hosanna। आइए, हालेलुया। गाने Hosanna। आइए परमेश्वर की आराधना करते हैं। भजन सहित प्रेरितों का 7:49 कहता है, प्रभु कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन Yes. और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव तले की पीढ़ी है। आमीन। यीशु के पांव हमारे भारत देश पे है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। Yes. हमारा प्रभु महान है। Come on, hallelujah. आइए इस गीत के द्वारा प्रभु को महिमा करेंगे। आइए होसाना, होसाना गाते हैं। हम गाए होसाना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा डोले सदा। Yes, Lord. तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो
Tell him so wonderfully. तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह ओ worship him. तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसैना, तू राजाओं का। तू राजाओं Come का on, Lord, we worship you, God. है राजा। We give all the glory, honor, and praise. तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता। तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने Yes, Lord. बेटे को Thank you, Jesus. कुर्बान किया। हम गाए हो सहना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सहना, ये तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है यीशु हमारा खुदा। तू है यीशु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है। Thank you, Lord. तू हमारा पिता है, Thank you, Jesus. तू हमारा मित्र है, Thank तू you. हमारा रखवाला, तू हमारा सब कुछ है प्रभु। Yes, Lord. तू परम प्रधान ईश्वर है। Amen. तू महान है प्रभु। Amen. तेरे जैसा कोई नहीं है Yes, प्रभु। Lord. हम तेरे नाम का होज़ाना गाते हैं। Yes, Lord. होज़ाना होज़ाना तेरे नाम को जो आ रहा है होज़ाना। Thank you, प्रभु Jesus. तेरे आगमन के इंतजार में हम प्रभु धन्यवाद कहते हैं पिता परमेश्वर Thank you, कि तू Lord. जल्द आ रहा है तेरे दुल्हन तेरे कलीसिया को ले जाने के लिए प्रभु। बाकी का समय तेरे हाथों में सौंपते Amen, हैं। Jesus, Lord. तेरे दास को आने वाले वचन को पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर प्रभु। बाकी की समय मध्यस्थी प्रार्थना हर एक वस्तुओं को प्रभु हम आपके हवाले करते हैं। हमारे दिमाग को, हमारे गले के स्वर को पिता हमको अभिषेक कर पिता Yes, परमेश्वर। Lord. जो भी हम कहेंगे पिता हमारे सूत्र से नहीं लेकिन पवित्र आत्मा तेरे द्वारा सारी बातें निकले प्रभु। Amen. बाकी के समय तेरे हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन आमीन। Amen. God is good
प्रभु भला है All the time God is good. और हमेशा के लिए प्रभु भला है। Nothing is impossible for my Jesus. मेरे यीशु के लिए कोई भी बात All नहीं things है। are possible when we trust in Him. सारी बातें संभव है जब हम प्रभु में Many विश्वास have करते not हैं। seen this day. बहुतों ने आज का दिन नहीं देखा But think है। about God's mercy upon you and me, those who are watching. We have God's mercy to live and worship Him. और विचार करो जो तुम और मैं देख रहे हैं, हम के ऊपर प्रभु की करुणा रोज नहीं हुई है, तो रोज प्रभु ने हमें संभाल कर रखा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद Now देना चाहिए। today's topic is intercession and prayer. आज का शीर्षक है मध्यस्थी और प्रार्थना। Now what is lacking in the world is intercession. अभी किस चीज की कमी है? वो है मध्यस्थी What प्रार्थना। is lacking in the world is prayer. विश्व में किस चीज की कमी है? वो है प्रार्थना। So news, people are watching the news. लोग न्यूज देखते हैं, People are hearing so many bad news. लोग अलग अलग गलत न्यूज को सुन रहे हैं। But let me tell you, when we pray and intercede, we get the good news from God. लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, जब हम प्रार्थना करते हैं और मध्यस्थी करते हैं तो प्रभु से हम खुशखबरी सुनते How हैं। the network is the source for telecast. जैसे नेटवर्क वो स्रोत है टेलीकास्ट करने के In the लिए, same way, your intercession and prayer is the telecast of heavenly kingdom to the nations of the world. तो वैसे तुम्हारा जो मध्यस्थी प्रार्थना है वो एक टेलीकास्ट के समय प्रभु के राज्य के First लिए। of all, we need to understand what is intercession. तो पहला भी समझना जरूरी कि मध्यस्थी का मतलब क्या है। Inter means somebody standing in the middle. मध्य के मतलब है बीच में कोई खड़ा है, Where among two people, somebody is standing in the middle. यानी दो लोगों के बीच में कोई मध्य में खड़ा है। And session means is pleading. स्त्री का मतलब है यानी वो Means standing in the middle and pleading on behalf of somebody. यानी आग्रह करना, प्रार्थना करना किसी और के Means God is there on the other side. यानी प्रभु दूसरी तरफ And here है on the other side we see the sins of the whole world. और दूसरी तरफ हम देखते हैं पूरे जगत पाप से भरा हुआ And है, people are perishing. लोग नष्ट हुए जा People रहे have हैं, problems. लोगों को समस्याएं People are हैं, suffering. लोग तकलीफ They झेल रहे have हैं, discouragements. निराशाएं हैं। But in between this, you are the chosen one. You are the called one to stand and pray in the gap. लेकिन उसके बीच में तुम चुने हुए जिसे प्रभु ने वो बीच में खड़े रह के गैप में खड़ा रहने के लिए चुना है। As I believe in the book of Ezekiel, it says God bends down himself from heaven and looking out who is going to stand in the gap and pray. तो एजिकियल की पुस्तक में लिखा है प्रभु नीचे झुक कर ऐसे देख रहे हैं कौन है जो बीच में आकर खड़े रहकर प्रार्थना करेगा, And मध्यस्थी you करेगा। know, prayer means people are not interested to pray. प्रार्थना अगर कहेंगे तो लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं I प्रार्थना में। remember when I came to the ministry, मुझे याद है जब मैं सेवा में you आया know, I was था 16 years old. तभी मैं 16 साल का I था। know that is the time, you know, my auntie, she used to come and knock at the door at 2:45 in the morning. तो तब मेरी मौसी जो है सुबह को 2:45 बजे आकर दरवाजा खटखटाती थी। And 3 o'clock we have to be ready till 7 o'clock to intercede for the nation. So, तो 3 बजे से लेके 7 बजे के लिए हम 7 बजे तक तैयार होकर मध्यस्थी प्रार्थना करते थे पूरे राष्ट्र you देश know, के she लिए। used to say, this is the job God has given to us. तो वो कहते थे कि यही काम प्रभु ने हमें दिया है। From 3, 4, 5, 6, 7, 4 hours solid continuous intercession तो for the सुबह world. 3 से 7 बजे 4 घंटे लगातार केवल मध्यस्थी प्रार्थना करते And थे। whatever I am today for last 30 years, it is because of the prayers. और अगर आज मैं जो कुछ भी हूँ उन दिनों की प्रार्थनाओं के कारण And है। till today, my spirit yearns to pray. और आज भी मेरे आत्मा में मुझे यत्न होता है कि मैं ज्यादा प्रार्थना So करूं। few minutes we will learn from the word of God and we will intercede for our nation. थोड़ा समय के लिए पहले प्रभु के वचन से सीखेंगे, फिर हमारे देश के लिए हम प्रार्थना You करेंगे। know, prayer means praying on behalf of somebody or communicating with God. प्रार्थना का मतलब है कि किसी और के जगह पर उनके बीच में खड़े रहकर प्रार्थना That is करना। why it is called intercession and prayer. इसीलिए मुझे मध्यस्थी प्रार्थना कहते हैं। Intercession is standing on behalf of somebody. मध्यस्थी का मतलब है मध्य में किसी के मध्य में खड़े रहना। Hallelujah. Like Moses stood before God and the Israelites. जैसे मूसा परमेश्वर और इजराइल के मध्य में खड़ा रहा And he pleaded before God. और प्रभु के सामने वो गिड़गिड़ाया। Like Abraham, Sodom, Gomorrah and God, he is in the middle and pleading with जैसे God. अब्राहम में सोदोम और गोमोरा और वो था वहाँ के लोग थे तो बीच में उसने मध्यस्थी की। So the prayer works. प्रार्थना कार्य करता One है। righteous man prays. एक धर्मी व्यक्ति प्रार्थना करता God है, comes down and transforms the nation. प्रभु नीचे उतर आकर पूरे राष्ट्र को बदल देता So है। that's what today we will learn from some
something from the Word of God. तो आइए आज कुछ सीखेंगे प्रभु के वचन The से। first thing is we need to have a dare to pray. पहले बात ये है कि हमें हमारे अंदर एक डेयरिंग होना चाहिए प्रार्थना। We need to have a dare to pray for great things. तो हमारे अंदर बड़े चीजों को मांगने का वो डेयरिंग होना चाहिए। मांगने के लिए प्रार्थना करने का। बड़े चीजों के लिए प्रार्थना करने का डेयरिंग होना We चाहिए। need to pray in such a way, इस रीति से प्रार्थना करनी like है Elijah prayed. जैसे एलिया ने Now the प्रार्थना Bible says in James chapter 5. की। अभी बाइबल कहता है याकूब का 5वां Now अध्याय। let us learn from Elijah's life. आइए एलिया के जीवन से सीखेंगे। Elijah was a man with a nature like ours. एलिया का 5वां अध्याय 17 वचन है। एलिया भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। And he prayed earnestly that it would not rain. और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे। And it did not rain on the land for 3 years and 6 months. और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ न बरसा। Hallelujah, we are going to complete 6 months. Coronavirus lockdown. अभी हम 6 महीना होगा जाएंगे कोरोना वायरस के लिए। Hallelujah. But see, the point is, Elijah was man like us. देखो एलिया हमारे समान एक दुख सुख व्यक्ति था। He was a very simple man. वो सामान्य व्यक्ति था। But he was a very honest man. लेकिन एक ईमानदार His व्यक्ति था। heart was clean. उसका हृदय साफ You था। know, he was earnestly praying before God. प्रभु के सामने वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता But था। this ordinary man, Elijah, ये सामान्य आदमी एलिया, the only thing is he earnestly prayed. वो एक ही बात है कि वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना When करता। he prayed और earnestly, जब वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना the करता, Bible says there was no rain on the land for 3 years and 6 months. बाइबल कहते हैं कि 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं Now हुआ। today morning I want to encourage you, आज सुबह को तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा, dare to pray for the great things as Elijah did. बड़ी बड़ी चीजों के लिए प्रार्थना करने का डेयरिंग रखो जैसे एलिया ने किया। When you pray no corona in your area. अगर तुम जब प्रार्थना करोगे कि कोरोना नहीं रहेगा तुम्हारे एरिया में, तो कोरोना नहीं When रहेगा। you pray diseases will not be activated in our nation, it will never be activated. अगर तुम प्रार्थना करोगे कि कोई भी रोग या बीमारी हमारे देश में नहीं आएगी, एक्टिवेट शुरू होगी, आगे बढ़ेगी, तो नहीं होगी। The place where we stay, जिस जगह पे हम रहते you know, हैं, next to our building, हमारे बिल्डिंग के पास में there is a huge MARA building. MMRDA का बिल्डिंग है। MMRD building is there. MMRDA का बिल्डिंग They है। made the quarantine outside. वहाँ पे उन्होंने वो क्वारंटाइन का We can पूरा see from बिल्डिंग our बनाया। window. हमारे खिड़की से दिखाई देता है, The wind is blowing. हवा बह रहा है। You think that we are closing the window because of that quarantine and sitting at home? क्या तुम्हें लगता है कि वो क्वारंटाइन लोग के लोग वहाँ ऐसे हम लोग खिड़की No, बंद no, करके no. बैठे We हैं? open the window and we pray. हम खिड़की खोलकर प्रार्थना करते You know, हैं। dare to pray for great things. तो बड़ी बड़ी चीजों को के लिए प्रार्थना करने का हिम्मत रखो। We family, we prayed. हम हमारा परिवार हम प्रार्थना करते No हैं, corona will come into our buildings. कोई भी हमारे बिल्डिंग में कोई कोरोना नहीं आएगा। God is working in our building. प्रभु हमारे बिल्डिंग में कार्य Dare कर to रहे हैं। pray for great things, my friend. मेरे दोस्त तो बड़े चीजों का प्रार्थना करने का हिम्मत Now रखो। listen, verse 18 says, देखो 18 वचन क्या कहता है। Again he prayed, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। Hallelujah. Now when you pray, देखो जब तुम प्रार्थना करते हो corona will stop. कोरोना रुकेगा। When you don't pray, जब तुम प्रार्थना नहीं corona करोगे will activate. कोरोना शुरू So होगा। every Christian brother and sister, हर एक मसीह भाई और बहन, you need to be activated to pray and intercede on behalf of our nation. तो तुम्हें एक्टिवेट होना है, सक्रिय होना है और हमारे देश के लिए प्रार्थना करना The है। moment you stop praying, और जैसे तुम प्रार्थना करके करना बंद करते हो, you know, there is an attack, a spiritual warfare over the nation of तो एक India. आत्मिक युद्ध होता है हमारे भारत देश के ऊपर। You know, we need to understand this strategy. हमें ये षड्यंत्र को समझना But we जरूरी need है। to pray like Elijah prayed. तो हमने जैसे एलिया ने दुआ की वैसे हमने दुआ And करना I है। believe that this morning God is going to hear from the throne and He will answer our prayers. और मैं विश्वास करता हूं कि आज सुबह प्रभु जरूर सिंहासन से ये बात सुनेंगे और हमारी प्रार्थना को Now when Elijah prayed, देखो जब एलिया ने प्रार्थना there was no rain for 3 years, 6 months. 3.5 साल के लिए वर्षा नहीं थी। But again when he prayed, लेकिन फिर से जब उसने प्रार्थना की rain came. तो भूमि पर Now the Bible says here one of the beautiful things, the earth produced its fruit. और यहाँ पे एक सुंदर बात लिखी है 18 वचन में कि आकाश से वर्षा हुई भूमि
फलवंत हुई। You know, after next 10 days, अगले 10 there is दिन going to be a move of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की बहाव आने वाला There is है। going to be a raise of anointing. एक ऐसा अभिषेक There is going to be किरणें a आएंगी, move of the power of God. प्रभु के सामर्थ बहेगा। And I believe that this move will change the nations of the world. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये बहाव पूरे राष्ट्रों को, जातियों को बदल So देगा। number one, you need to pray a daring prayer. तो तुम्हारे अंदर एक बड़ी हिम्मत वाली प्रार्थना करना जरूरी डर है। की प्रार्थना नहीं करने का है। Elijah never feared and prayed. एलिया ने कभी भी डर के प्रार्थना नहीं की। Elijah prayed great things. एलिया ने बड़े-बड़े चीजों के लिए Point प्रार्थना number की। one, dare to pray for great things. पहला मुद्दा, बड़े-बड़े चीजों के लिए प्रार्थना करने का हिम्मत रखो। Point number two, दूसरा मुद्दा, James chapter 1 verse 6. याकूब 1:6। The Bible says, but let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। Hallelujah. Now the Bible says, let him ask in faith. बाइबल क्या कहता है? विश्वास से मांगे। We need to pray in faith. तो हमें विश्वास से प्रार्थना करनी है। Without doubt. Your prayer should not have doubt. यानी तुम जब प्रार्थना करते हो उस प्रार्थना में कोई संदेह नहीं Many होना times चाहिए। we pray, बहुत बार होता है हम प्रार्थना we करते हैं, intercede, हम मध्यस्थी करते हैं, and how it will happen? फिर हम ही सोचते हैं कैसे होगा। So it will not happen वो because नहीं your होगा। doubt is a stumbling block God to answer your prayers. क्योंकि वो संदेह है, एक बड़ी अड़चन है तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर आने Now की। what the Bible says, let him ask in faith with no doubting. बाइबल क्या कहता है? पवित्र शास्त्र कहता है विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न For करे। he who doubts is like a wave of sea driven tossed by the wind. क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती You है। know, I remember when Jesus told a story. मुझे याद है एक कहानी जब If you have faith, you can command this mountain to fall in the sea. अगर तेरे अंदर विश्वास है कि तू आज्ञा दे इस पर्वत को जाकर समुद्र में गिर जा, An गिर old, जाएगा। an old lady came तो एक औरत आई, हाँ। बुढ़ी औरत, in front of my house. There is a big mountain. वो कह रहे कि मेरे घर के सामने एक बड़ा पर्वत है, So tonight I will pray. तो आज मैं प्रार्थना करूंगी। But morning when I get up, जब सुबह को मैं this उठूंगी mountain will disappear. तो ये पर्वत गायब हो जाएगा। And she was praying. और जैसे वो She प्रार्थना said, करेगी, Jesus has told us, उसे कहा कि यीशु ने हमें if you बताया, have faith, यदि विश्वास है you know, you command this mountain to fall in the sea. तो तू आज्ञा दे इस पर्वत को समुद्र में जाकर गिरने And दे। she spoke to the mountain और वो पर्वत से बातें कर and went for a sleep. और फिर सो गई And morning she got up early in the morning. और सुबह सुबह उठी, When she opened the door, जब उसने दरवाजा खोला she saw the mountain there only. वहां पर वो पर्वत को You know देखा। what was the word she said? जानते हो उसने क्या कहा? I knew it. मैं जानती थी। I knew it. How can this big mountain fall in the sea? वही तो ये इतना बड़ा पर्वत जाकर समुद्र में कैसे गिर सकता That है? means she commanded the mountain, यानी उसने पर्वत को आज्ञा तो दी, having faith in Jesus. यीशु में विश्वास But रखते, whole night she was thinking, doubting, how can this big mountain will fall in the sea? लेकिन पूरे रात वो सोई नहीं, वही बात सो के संदेह कर रही थी कि इतना बड़ा पर्वत तो समुद्र में जाकर गिर के My गिर सकता brother, है। my sister, many times our prayer is a doubtful prayer. मेरे भाई मेरे बहनों, बहुत बार हमारी जो प्रार्थना होती है वो ऐसे संदेह की प्रार्थना Now, होती है। years back, I read an article in the paper about a California girl, Sunday school girl. बहुत साल पहले मैंने पत्र में, न्यूज़पेपर में जो है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, एक लड़की जो कैलिफोर्निया की थी उसके विषय में। And she used to regularly attend the Sunday school. वो हमेशा संडे स्कूल जाया करती थी। And one day teacher was teaching, if you have faith, you can command this mountain to fall in the sea. Without doubt, it will fall in the तो sea. एक दिन उसके संडे स्कूल का टीचर सिखा रही थी कि यदि तेरे अंदर विश्वास है और विश्वास है तो इस समुद्र, एक पर्वत को कहेगा जाके समुद्र में गिर जा, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Suddenly, this daughter, अचानक ये
she remembered, "Arey, in my school ground there's a big rock. It is a stumbling block to play for us." तो ये लड़की को अचानक याद आया कि मेरे स्कूल में एक ऐसा बड़ा चट्टान है और हमारे लिए बड़ी अड़चन है जो मैदान में है, क्योंकि अब बच्चे उसके कारण खेल नहीं पा रहे हैं। And next day she goes to the school. अगले दिन वो स्कूल जाती है। "My teacher has told me, मेरी टीचर ने मुझसे कहा it's written in the Bible, और पवित्र शास्त्र में लिखा and हुआ I है, have faith. मेरे अंदर विश्वास नहीं You है, rock, तू चट्टान go and fall in the sea." जाकर इस समुद्र में गिर जा। First day she prayed, पहले दिन प्रार्थना की, nothing happened. कुछ नहीं हुआ। Second day दूसरे she दिन prayed, फिर से प्रार्थना, nothing कुछ happened. नहीं हुआ। Third day she prayed, तीसरे दिन प्रार्थना की, nothing happened. कुछ नहीं हुआ। Fourth day, चौथे दिन the principal was watching her, what she's doing. प्रिंसिपल उसे देखती थी कि क्या कर रही है। Every day she comes and commands this rock to fall in the sea in Jesus' name. हर दिन ये लड़की आती है, रोज आज्ञा देती है कि ये चट्टान को जा तू समुद्र में गिर जा यीशु के नाम में। Fifth day happened. पांचवा दिन हुआ, Sixth day happened. छठा दिन हुआ, Seventh day Sunday school again. सातवां दिन फिर से संडे स्कूल। And Monday morning when she comes, सोमवार के दिन जब वो आती है स्कूल, principal calls her to the office. प्रिंसिपल उसे अपने दफ्तर में बुलाता है। And says, principal says, "Daughter, this check belongs to you." तो प्रिंसिपल आती है और कहते हैं कि बेटी ये चेक तेरे लिए। So, "Sir, what is this check about?" ये क्या है ये चेक? "No, this check belongs to you." ये चेक अभी तेरा है। And I believe, और मैं विश्वास करता हूँ, you know, and the check is yours. वो चेक तुम्हारा है। She was shocked for a minute. एक मिनट के लिए वो अचंभित हो जाती है। And the principal tells her, प्रिंसिपल से बताती है, "Daughter, बेटी I always used to see you're commanding this rock in faith to go and fall in the sea." बेटी मैंने देखा कि तू रोज आकर विश्वास से ये चट्टान से गिर जाके समुद्र में गिर जा। But today, on Saturday, लेकिन आज there is a roaring sea on the seashore. There is a storm. समुद्र के किनारे एक बड़ा तूफान आया था। I know they are बड़ा लहर आती है वहाँ पर। they are collecting all the stones तो बड़े लहरों के कारण वो बड़े बड़े पत्थरों को ले रहे हैं and they are paying for this. और उसके लिए वो पैसा देना चाहते हैं। And this check belongs to you. तो इसीलिए ये चेक तुम्हारे लिए है। Now your prayer of faith क्योंकि तुम्हारे विश्वास की जो प्रार्थना है has answered, उसके द्वारा हमें उत्तर मिला। and also this rock is falling in the sea. और ये चट्टान को उन्होंने निकाल दिया है, वो समुद्र के किनारे What a डाल दिया। wonderful move of God in that daughter's life. देखो प्रभु के ऐसा बहाव उस बेटी के जीवन Now में। listen, when she prayed, देखो जब उसने प्रार्थना she की, never doubted. उसने कभी शक नहीं So that's किया। what your prayer should not have doubt. देखो तुम्हारी प्रार्थना में कोई शक नहीं The होना चाहिए। moment the doubt comes in your prayer, जब तुम्हारी प्रार्थना में अगर संदेह आ जाता that's why है, many people's prayers are unanswered today. इसलिए बहुत लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं You pray. करते। तुम प्रार्थना करते But हो, you have a doubting spirit. लेकिन तुम्हारे अंदर एक संदेह की आत्मा है। What Jesus said, यीशु ने क्या कहा? "You in me, तुम मुझ में I in you. और मैं तुझ में। What so you believe and ask in prayer, जो भी तुम विश्वास करके मांगोगे प्रार्थना में, and believe that my Father is answered your prayers." और विश्वास करो कि मेरे पिता ने तुम्हें उत्तर दे दिया That है। means you need to believe in advance. उसका मतलब है तुम्हें पहले से विश्वास करना है कि तुम्हें प्राप्त होगा। Praying in faith is the key. विश्वास से प्रार्थना करना ही वो चाबी है। Dare to pray for great things. हिम्मत रखो बड़ी चीजों को मांगने के लिए। Pray in प्रार्थना faith. करिए, विश्वास से प्रार्थना करो। Number 3, तीसरा, James 5:16 says, योना का 5:16 कहता है, James याकूब का 5:16 कहता है, 5:16 says, "Confess your trespasses to one another and pray for one another, that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much." इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगी हो जाओ। धर्मीजन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। Hallelujah. Now think about righteous prayer availeth much. सोचो अभी ये धर्मी जन की जो प्रार्थना है वो बहुत प्रभावशाली होती Now, है। what is the meaning of righteousness? अभी धर्मी का मतलब क्या है? Righteousness means right living with God.
धर्मी बनना का मतलब है परमेश्वर के सामने एक साथ में सही जीवन When you जीना। walk according to the word of God, जब तुम प्रभु के वचन के अनुसार when you चलते हो, literally take the word of God and be serious about the word of God, जब तुम प्रभु के वचन को लेते हो और बहुत गंभीर होते हो उसके बारे में, and you claim the promises of और God, प्रभु के जितने भी वादे हैं उसे लेते हो, and every righteous man prays according to the word of God, हर एक धर्मी व्यक्ति प्रभु के वचन के अनुसार प्रार्थना करता है, and he will be in the center of God's will. वो परमेश्वर के सिद्ध मध्य इच्छा में रहता The है। prayer of righteous person is very powerful. एक धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। That's what if you see Noah, देखो इसलिए नूह को देखते हो, he was a righteous man. वो एक धर्मी He आदमी था, was chosen by God. प्रभु की ओर से चुना हुआ था, He prayed. उसने प्रार्थना God की, saved his family. प्रभु ने उसके परिवार को बचाया। You know, you pray as a righteous person. तुम एक धर्मी जन के रूप में प्रार्थना करो। You know what is the righteous man's nature? जानते हो एक धर्मी जन की जो उसका स्वभाव क्या होता है? You know, righteous man's nature is, he will forgive one another, वो एक दूसरे को क्षमा करते हैं, and also he prays for the healing of others. तो फिर वो दूसरों की चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. He doesn't have any negative things in his heart. उसके दिल में कोई भी नकारात्मक चीज नहीं He रहती is है। only God-focused man. केवल उसका जो ध्यान रहता है केवल परमेश्वर के ऊपर That's why रहता है। the fervent prayer of a righteous man availeth much. देखो एक धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली And होती today है। we need to live in such a way to pray to God to answer our prayers. तो आज हमें ऐसी रीति से प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का सारे उत्तर दे। And number 4, चौथा मुद्दा, God hears and answers our prayer. प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, उसका उत्तर भी देता है। When you take a first step, dare to pray for great things. जब तुम पहला कदम लेते हो और बड़ी-बड़ी चीजों के लिए मांगते हो, Then you pray in faith. फिर तुम विश्वास से प्रार्थना Then करते हो, you pray as a righteous prayer. फिर एक धर्मी जन की प्रार्थना करते What is हो। the righteous prayer? धर्मी जन की प्रार्थना क्या है? Being in the center will of God, प्रभु के मध्य इच्छा में holding प्रार्थना to the करो। promises of His word, प्रभु के वचन को थामे रखना and है declaring His word, और उसके वचन को घोषित and करना है praying through His word. और उसके वचन के द्वारा प्रार्थना And करनी है। God hears that prayer and answers that और prayer. प्रभु उस प्रार्थना को सुनता है और उस प्रार्थना का उत्तर भी देता है। Psalms 34. भजन संहिता 34। Oh, thank you, Jesus. There is a move of the Spirit. पवित्र आत्मा का बहाव है। Hallelujah. We are learning the word of God. हम प्रभु का वचन सीख रहे हैं। Psalms 34:15. भजन संहिता 34:15। The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their cry. See this? यहोवा की आंखें धर्मी पर लगी रहती है हाँ। और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। When you right live with God, देखो जब तुम एक सही जीवन जी रहे हो, धर्मी का जीवन जी रहे the हो, eyes of the Lord are on the righteous. तो प्रभु की यहोवा की जो आंखें हैं वो धर्मी पर लगी रहती Our है। Lord's eyes is not on the wicked; His eyes is on the righteous. प्रभु की जो आंखें हैं वो दुष्ट लोगों के ऊपर नहीं लेकिन धर्मियों पर लगी है। Only we have the eyes on the wicked. हाँ, लेकिन केवल हमारी आंखें दुष्टों के ऊपर लगी है। No. We should become righteous before God, and God's eyes will be upon our lives. तो हमें प्रभु के सामने धर्मी बनने और प्रभु की आंखें हम पर Now लगी listen, रहती है। when a righteous cries, God's ears are open to their cry. देखो जब एक धर्मी व्यक्ति दुहाई करता है तो प्रभु के कान लगी रहती है उसकी आवाज Now सुनने के today, लिए। as we become righteous, means right living with God and His Word, we pray and cry, and God answers our prayers. जब हम धर्मी हैं और जब हम कान रोते हैं गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। Now listen to this very powerful 16. The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. देखो 16 वचन बहुत महत्वपूर्ण है। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। 17. The righteous cry out, and the Lord hears and delivers them out all their troubles. 17 वचन, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। Now what does it mean? इसका मतलब क्या है? Meaning God is near to His children.
यानी प्रभु अपने बच्चों के निकट हैं। God is not with the wicked. प्रभु दुष्टों के साथ God नहीं। will never allow wicked to touch our lives. प्रभु दुष्टों को हमें छूने भी नहीं देंगे। Why? Because when you are right living with God, क्योंकि जब तुम एक धर्मी का जीवन when जीते you हो, are a child of God, जब तुम प्रभु के संतान God हो, hears your prayers. प्रभु तुम्हारे प्रार्थना को God सुनता है। answers your prayers. प्रभु तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर And देता है। I'm telling you, this scripture says, the righteous cry out and the Lord hears. देखो ये वचन क्या कहता है, दो धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है And delivers them out of all their troubles. Your troubles are going to be over in Jesus' name. और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। तुम्हारे सारे विपत्ति खत्म होंगे। In the यीशु name कहते of Jesus, I prophetically declare this word upon your lives. हैं, यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी के रूप में तुम्हारे जीवन पर ये मैं घोषित Those करता who are हूँ। hearing me or those who are going to hear me afterwards, I'm telling you, if you are a righteous, you cry unto the Lord and God will deliver you from all your troubles. अगर जो अभी मुझे देख रहे हैं या बाद में देखने वाले हैं, जो भी तुम हो, लेकिन अगर तुम एक धर्मी व्यक्ति हो, जब तुम दुहाई दोगे तो प्रभु तुम्हें सारे विपत्तियों से छुड़ाएगा। Now listen to me. We as a righteous people, देखो हम धर्मी होने के रूप we are में broken, हम टूटे हुए, we are crying, हम रो रहे हैं, we are praying, हम प्रार्थना कर but रहे हैं, God will not leave us unanswered. लेकिन प्रभु हमारे प्रार्थना का जरूर उत्तर देंगे। You know, He will not leave us like that, forsake us. वो हमें ऐसा ही नहीं छोड़ेंगे। We may feel that, you know, God is not answering our prayers. शायद हमें लग रहा होगा कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा But है, many people have not seen today. लेकिन बहुतों ने आज का दिन भी नहीं Think देखा है। about, you are a righteous child of God in the hand of God. सोचो तुम प्रभु के एक धर्मी बच्चे हो, उसका संतान And हो, God has saved you to see today. और प्रभु ने तुम्हें इसलिए बचाया है ताकि आज का दिन तुम देख पाए। I believe God hears and answers our prayers. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु जरूर सुनता And है, also- हमारी दुआओं का उत्तर भी And also देता I है। believe God is near to His children. और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि प्रभु अपने बच्चे के समीप है। 18th verse, the Lord is near to those who have a broken heart and save such have a contrite spirit. और 18 वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। Hallelujah, is ready to heal the broken hearts. टूटे हुए मन वालों को वो चंगाई देने के लिए तैयार है। That means God hears. उसका मतलब है प्रभु That सुनता means है, God answers our prayers. यानी प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता Not है। only He heals the broken hearts, वे केवल हमारे हृदय को चंगाई नहीं देता, not only He hears the broken heart, तो केवल हमारे हृदयों को मनवात सुनता ही केवल He नहीं है, saves such a contrite heart. वो एक टूटे हुए मन वालों को हाँ। बचाता, उद्धार भी देता है। He saves such a contrite spirit. पीसे हुओं को जो उद्धार भी देता है। Hallelujah. Our God is a prayer answering God. हमारा प्रभु प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर। Now dare to pray for great things. तो बड़े बड़े चीजों के लिए प्रार्थना करने का हिम्मत Pray रखो, in faith विश्वास से प्रार्थना करो and pray like a righteous man. और धर्मी व्यक्ति के समान प्रार्थना करो। And also God hears and answers our prayers. और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, उसका उत्तर भी देता And है। believe me, God is near to His children. और यह विश्वास करो, प्रभु अपने बच्चों के समीप हैं। You know, when these four things happens, जब ये चार चीजें there is होती हैं, something that is birthed inside you. तो तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ जन्म लेता है। Hallelujah. What is going to birth in the Psalm 66, 13 to 20? तो क्या 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 वो नई चीजें जो तुम्हारे अंदर से जन्म लेगी? भजन संहिता 66 66, 13 to 20. 13 से 20 पढ़ेंगे। Okay. Let me open. It says, I will go into the house with burnt offerings, I will pay you my vows. मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा। Now, you know, when you pray, when you start praying, dare to pray for great things. जब तुम बड़े बड़े चीजों के लिए प्रार्थना करने का हिम्मत रखते And हो when you pray in faith, और विश्वास से प्रार्थना करते हो you pray like a righteous person. और फिर एक धर्मी के समान प्रार्थना करते हो, God hears, प्रभु सुनता है, God answers, प्रभु उत्तर देता है and God is near to His children. और प्रभु अपने बच्चों के समीप है। When these things are formed inside you, जब ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर से उत्पन्न होती हैं, something is birthed inside you. तुम्हारे अंदर कुछ एक नया जन्म जैसा What is जन्म birthed लेता है। inside you? कौन सी चीजें वो जन्म लेता है? The praise and thanking God for answers birthed inside you. तो
तो स्तुति और प्रभु की को धन्यवाद देना जो क्योंकि तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर प्राप्त हो Long गया, back वो तुम्हारे some- अंदर से निकलना शुरू होता है। Long back, somebody asked me, how do you describe faith? बहुत पहले किसी ने मुझे विषय पूछा था कि विश्वास के बारे में आप क्या वर्णन Can करोगे? you define faith? क्या विश्वास का वर्णन बता सकते हो? I said praising and thanking God. मैंने कहा स्तुति और प्रभु को धन्यवाद देना। Means God has already answered before I pray. I'm praising and thanking Him. यानी मेरे प्रार्थना को खत्म करने से पहले प्रभु ने उसको सुन लिया, उत्तर भेज दिया, इसलिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। Meaning, my understanding of faith in prayer is with God nothing is impossible. मेरी समझ ये है प्रार्थना में और विश्वास के द्वारा ये है कि मेरे प्रभु के लिए कोई भी बात Now this is कठिन नहीं। verse 14, which my lips have uttered and my mouth has spoken when I was in trouble. देखो 14 वचन कहता है, जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कहती। I will offer you burnt sacrifice of fat animals with sweet aroma of rams. I will offer bulls to the goats. और मैं Good तुझे goats. मोटे पशुओं के होम बलि, मेढ़ों की चर्बी के धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरी समेत बैल चढ़ाऊंगा। Now this is all praise. देखो ये सारी स्तुति है। You know, when God is already answered our prayers, देखो प्रभु ने पहले से जब हमारे प्रार्थना का उत्तर दे we दिया है, need to give praise. हमें उसे स्तुति We need to देनी है, give thanks unto the Lord. प्रभु को धन्यवाद देना Now है। listen, 16 to 20 is very powerful. अभी 16 वचन से 20 वचन बहुत महत्वपूर्ण है। Come and hear all who fear God, and I will declare what He has done for my soul. Wow. हे परमेश्वर के सब डरवैयों आकर सुनो, हाँ। मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया Now है। come on, let us wait. We are waiting to lockdown to open. There are many testimonies. देखो हम लॉकडाउन को जो है तालाबंदी को खोलने के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत गवाहियां I हैं। want to tell you, many people have thousands and thousands of testimonies. मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बहुत हजारों लोगों के पास गवाहियां है। You know, come and hear all who fear God. हे परमेश्वर के सब डरवैयों आकर सुनो, I will declare what God has done to my soul. Wow. मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। Your soul was gripped with the contrite spirit. देखो तुम्हारा जो प्राण था वो पूरा तरह से पीसा हुआ था। And now God has delivered. Come, hear what God has done. I want to tell अरे you. अभी प्रभु ने छुटकारा दिया है, तुम कहते हो कि आओ सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रभु ने क्या किया 17. है। I cried to Him with my mouth, and He was exalted with my tongue. Wow. 17 वचन, मैंने उसे पुकारा हाँ। और उसी का गुनानुवाद मुझसे हुआ। Hallelujah. He is giving thanks unto the Lord. वो प्रभु को धन्यवाद देता है। 18. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear, but certainly God has heard me. He has attended to the voice of my prayer. 18 वचन, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, Again, 19. परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, हाँ। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। He has attended to the voice of my prayer. I prophesy, मेरी our प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। God is listening to your prayers. तो मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि हमारा परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा है। If you have doubt, अगर तुम्हारे अंदर That is not my संदेह problem. है तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं, not my God's problem. हमारे प्रभु का प्रॉब्लम भी You नहीं है। need to, without doubt, you need to believe, and what you prayed, you said, yes, Lord, it is done in Jesus' name. जो भी तुम प्रार्थना करते हो उसमें तुम्हें संदेह नहीं करना है और प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। Certainly, God has heard me and has attended to the voice of my prayer. 19. परमेश्वर ने तो सुना और उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। 20. Blessed be God who has not turned away my prayer, nor his mercy from me. Wow. 20 वचन, धन्य है परमेश्वर जिसने तो न मेरी प्रार्थना अनसुनी की है और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। Can I hear an amen? क्या एक आमेन सुन सकते हैं? Turn to somebody and say, I got the secret. किसी से कहो कि अभी मुझे एक रहस्य मिल God गया। is attending to my prayers every time I voice. हर बार जब मैं बोलता हूँ, मैं प्रार्थना करता तो प्रभु मुझ पर ध्यान देता है। My voice has been heard in heaven. स्वर्ग में मेरी आवाज सुनी गई है। Okay, thanks and praise धन्यवाद और उसकी स्तुति, because God answered your prayers. क्योंकि प्रार्थना प्रभु ने तुम्हारी Okay, प्रार्थना one more सुनी। scripture I want to show you. 17 Psalms verse 20.
और एक वचन दिखाऊंगा, भजन संहिता So 17। these are the scripture that motivates and encourages and makes us firm in the word of God. देखो ये सारे वचन है जो हमें प्रभु के वचन में जो है उत्साहित करता है और आगे बढ़ाता है। Okay. Read verse 7, 17 verse 7. Show your marvelous loving kindness by your right hand, and O you who save those who trust in you from those who rise up against them. तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणगतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। Now God is going to show His loving kindness. देखो प्रभु अपने शरणगतों को दिखाएंगे। Now if you read in 17th chapter 1 and 2. अगर तुम पहला और दूसरा अध्याय पढ़ोगे, Now here is the पहला और दूसरा this is the वचन whole chapter, 17th chapter is talking about prayer with confidence, for salvation. देखो ये पूरा जो 17 अध्याय है वो प्रभु के प्रार्थना के विषय में है और प्रभु के उद्धार के विषय में है। Hear a just cause, O Lord, attend to my cry, verse 1. Give ear to my prayer, which is not from deceitful lips. हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। Hallelujah. निष्कपट मुंह से निकलती है, deceitful lips. ध्यान दो प्रभु। See this word. If we need to learn how to pray. तो हमें सीखना जरूरी है कैसे प्रार्थना करनी है। We are not praying against the enemies. हम शत्रु के बारे में प्रार्थना We नहीं have only enemy. हमारे एक शत्रु। Man is not our enemy. मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है। Devil is your enemy. तुम्हारा दुश्मन शत्रु Negativity is your enemy. नकारात्मक बातें तुम्हारी शत्रु So है। verse 2 says, let my vindication come from your presence. Let your eyes look on the things that are upright. दूसरा वचन कह देता है कि मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहें। Hallelujah. And this is the time when we pray for the justice. God will bring justice through our prayers. और ये समय है जब हम न्याय के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु न्याय देंगे। Now what we learned? क्या हमें क्या सीखा? Dare to pray for great things. बड़े-बड़े चीजों के लिए प्रार्थना करने का हिम्मत रखो। Pray in faith. दूसरी बात है विश्वास से प्रार्थना करो। Pray like a righteous person. एक धर्मी जन के जैसे प्रार्थना करो। And believe that God hears and answers prayers to His children. तो विश्वास करो कि परमेश्वर उसकी धर्मी जन की प्रार्थना को सुनते हैं। And when you pray, next step is you begin with praise and thanksgiving. दूसरा कदम है कि प्रार्थना करने के बाद तुम धन्यवाद देना शुरू करते हो और प्रभु को की स्तुति करते The हो। meaning you give thanks and praise, that means God has answered your prayers. तो तुम धन्यवाद और स्तुति इसलिए करते हो क्योंकि विश्वास करते हो कि प्रभु ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली Your है। vindications have been heard. यानी तुम्हारी दुहाई को प्रभु ने सुन ली है। Psalms 50 verse 15 says, 15, भजन संहिता 50:15 कहता है, call on the Lord in the time of trouble. But God will redeem my soul from the power of the grave. Sorry, 50 verse 15. Call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you shall glorify me. संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। Amen. Call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you shall glorify me. संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। Now this is the time of intercession and prayer. अभी ये समय है मध्यस्थी प्रार्थना The करने whole का। world is in the trouble.
पूरे विश्व में एक संकट है। Now what is the assurance God is giving us? प्रभु हमें क्या दिलासा देते हैं? Call upon me in the day of trouble. संकट के दिन तू मुझे पुकार, I will deliver you मैं तुझे छुड़ाऊंगा and you shall glorify me. और तू मेरी महिमा करने Now पाएगा। we as the servants of God, हम प्रभु के दास we as the body of Christ, मसीह के देह होने के when we call upon the name of the Lord, जब हम प्रभु को पुकारते He हैं will deliver us from all. तो वो हमें सबसे छुटकारा You छुड़ाएगा, know, He will deliver us from all trouble. सब संकट से वो हमें छुड़ाएगा। Why He will deliver us from all क्यों हमें trouble? सब संकट से छुड़ाएगा? That we shall glorify Him. ताकि हम उसकी महिमा करें। This is the time the glory goes to the Lord Jesus Christ alone. ये समय है महिमा केवल प्रभु यीशु मसीह को देनी। And that is what I'm saying. God answers the intercessory prayers. इसलिए Give मैंने me 10 कहा, minutes more. इसलिए मैंने कहा कि प्रभु मध्यस्थी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। Hallelujah. We will learn who are those people who intercede and pray. हम देखेंगे अभी कौन है वो लोग जिन्होंने मध्यस्थी की प्रार्थना की। Till now we learned about prayers. अभी हमने सीखा कि प्रार्थना क्या है। Now we will learn God answers intercessory prayer. अभी हम सीखेंगे मध्यस्थी प्रार्थना को प्रभु कैसे उत्तर देते You हैं। know, I will not read every scripture. हर एक वचन को मैं नहीं पढ़ूंगा। Acts chapter 12, 1 to 17. प्रेरितों का 12 अध्याय 1 to 1 से 17. 17 ऐसा कहता है। You know, church meet for prayer. Peter was soon set free. कलीसिया जब इकट्ठे हुए प्रार्थना करने के लिए तो पतरस को Now, बंदीगृह से आजादी मिली। the Bible says here, यहाँ पे read पवित्र this शास्त्र कहता one. है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यहोवा के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। Okay, fine. Now verse 5 says, Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. प्रेरितों Come on. 12:5 कहता है कि बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही There थी। was a constant intercession prayer for Peter. यानी पतरस के लिए लगातार कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। Hallelujah. When Herod was about to bring him out that night, prayer was sleeping bound with two chains. Peter was sleeping bound with two chains between two soldiers, and the guards before the door were keeping the prison. Now behold, an angel of the Lord stood by him, and light shone in the prison and struck Peter on the side and raised him up, saying, Arise quickly, and his chains fell off his hands. और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर, और उसके हाथ में जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। Now I want to encourage you and tell you, my friend, मेरे दोस्तों, अभी तुम्हें इस प्रोत्साहित करके ये कहना it is चाहूंगा, the time for the church to intercede and pray. ये समय है कलीसिया को मध्यस्थी का प्रार्थना करने There का। was a constant prayer. यहाँ पे लगातार Now प्रार्थना कर रही थी। Peter was in the jail, देखो पतरस बंदी गृह में but the था, church was not silent. कलीसिया चुपचाप नहीं But the बैठी church was interceding on fire. और कलीसिया अग्नि से भरे हुए प्रार्थना कर And रही this थी। prayer intercession will break the chains and breaks the iron door. देखो ये मध्यस्थी प्रार्थना सारे जंजीरों को तोड़ देती है और लोहे के दरवाजे को तोड़ देती We, the है। body of Christ, हम जो मसीह के देह we, हैं, the children of हम God, परमेश्वर के we, the संतान, righteous हम people, जो धर्मी लोग हैं, call unto God, प्रभु को पुकारते and the हैं iron doors will open up. और वे सारे लोहे के दरवाजे खुलते In हैं। the name of Jesus, यीशु मसीह के as नाम we are में going to intercede, जैसे हम मध्यस्थी this करेंगे, locked door will be opened up in Jesus' ये name. लॉकडाउन यीशु मसीह के नाम में खुल जाएगा। If the church can pray and Peter can be out of prison, अगर कलीसिया को प्रार्थना के द्वारा पतरस बंदीगृह से बाहर आ सकता but है, here the word of God says they constantly prayed and offered to God. यहाँ पे वचन कहता है कि वो लगातार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते I रहे। prophesy in the name of Jesus. यीशु के नाम में भविष्यवाणी This is करता the हूँ। prophetic picture of the present day. आज के दिन के लिए ये भविष्यवाणी का चित्र है। What is the prophetic picture? तो ये भविष्यवाणी का चित्र क्या है? Constant prayer will open up the lockdowns. लगातार प्रार्थना ये तालाबंदी को खोल देगा। Let's pray every moment, every time. Pray, and see the hand of God. आइए हर समय हर क्षण प्रार्थना
करते रहते हैं और देखेंगे प्रभु का हाथ आते हुए। You know, Peter was in the prison, पतरस बंदीगृह में था, but church was earnestly praying. लेकिन कलीसिया लगातार प्रार्थना कर रही थी। And you know, if you read in verse 12, अगर 12 वचन पढ़ोगे, when he had considered this, he came to the house of Mary. The mother came to house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many gathered together. What they were doing? Praying. और यह सोचकर कि वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है, वहाँ बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बहुत लोग Praying. प्रार्थना। Now listen, here God did miracles. देखो यहाँ पे प्रभु ने आश्चर्य कर्म The किया, chains broke, जंजीरें टूट गई, iron door open. लोहे के दरवाजे खुल गए। God brought angels of God brought Peter out of the prison. परमेश्वर के दूत ने उसे बंदीगृह से बाहर लाया पतरस And को। now listen what is happening. अभी देखो क्या हो रहा है। When he came to Mary James place, और जब वो मरियम के पास आए, याकूब के घर आया, you know, they were still praying. और यहाँ वहाँ पे फिर भी वो प्रार्थना The में थे। prophetic picture for the present day, many men of God and the servants of God in the body of Christ. ये भविष्यवाणी का चित्र परमेश्वर के दासों के लिए, मसीह के देह के लिए और प्रभु के लोगों के लिए। This is the prophetic picture for all the fivefold ministry. ये भविष्यवाणी का चित्र है वो 5 सेवकाइयों के लिए। What is the prophetic picture? ये क्या है वो प्रभु Not only you should pray in the lockdown, even when the lockdown is open, you need to keep on praying. यानी जब तालाबंदी है केवल प्रार्थना में नहीं लगा रहना, लेकिन तालाबंदी खुलने के बाद भी प्रार्थना में लगे हुए लॉलीन रहना है। Your prayer and intercession should continue even after the lockdown opened. ये तालाबंदी खुलने के बाद भी तुम्हारी मध्यस्थी प्रार्थना God लगातार रहनी चाहिए। is going to intervene very soon in our nation. प्रभु जरूर हमारे देश में जल्दी से दाखिला There is देंगे। going to be a powerful move of the Holy Spirit in the days to come. आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा एक बड़ा काम करने There वाली is going to है be a revival of latter glory. और एक बड़ी बेगारी आने वाली, बड़ी महिमा आने वाली And this है। morning I prophetically give you the picture. और भविष्यवाणी का एक चित्र मैं सुबह देता हूँ। You don't only limit for yourself to, because you're locked down, you started your ministry. कि ये मत अपने आप को सीमित मत रखो कि तुम्हारे ये तालाबंदी के कारण तुम्हारी सेवकाई शुरू हो गई है। Whether it is lockdown or lockdown open, you keep continuing this ministry for the glory of God. अगर तालाबंदी है, तालाबंदी खुलने के बाद भी यही सेवकाई में बढ़ते रहो जैसे They प्रभु की were महिमा के लिए। continually praying. वो लगातार लीन होकर प्रार्थना कर Peter रहे was थे। released. पतरस को छुटकारा मिला। Meaning, don't neglect the prayer and intercession. That's what the Bible says. यही तो बाइबल कहता है कि मध्यस्थी की जो प्रार्थना है उसे जो है छोड़ो मत, उसे Peter नकारो came मत। to their house. पतरस उनके घर आया, They even don't know Peter is released. उनको मालूम भी नहीं कि पतरस को आज छुटकारा मिला। But they are praying. लेकिन वो लोग प्रार्थना कर That रहे is what God is expecting in this day. हैं। इन दिनों में प्रभु Whoa. यही बात की अपेक्षा करते Come on, हैं। somebody shout hallelujah. कोई तो हालेलुया कहे। You know, there is another man I want to show and get into prayer. और एक आदमी है, व्यक्ति है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, फिर मैं प्रार्थना में जाऊँगा। Paul was a man of prayer. पौलुस एक प्रार्थना वाला Can we व्यक्ति read था। Ephesians 6:18? क्या हम इफिसियों का 6:18 पढ़ सकते See हैं? what kind of man of Paul. देखो पौलुस कैसा आदमी था, What kind of prayer is to make? कैसी प्रार्थना वो करता था। Praying always with all praise and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication of saints. For all saints. हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना हाँ। और विनती करते रहो। Hallelujah. और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती Now किया करो। here specifically it is mentioned the prayer intercession is not in the flesh, in the spirit realm. यहाँ पे खास रूप से ये बताया गया है जो मध्यस्थी की जो प्रार्थना है वो आत्मा में कर रहे हैं। Prayer and intercession and supplication is in the spirit. ये जो ये मध्यस्थी प्रार्थना विनती करना वो आत्मा में प्रार्थना It करना is है। your prayer should not be a vain bubbling. यानी तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ ऐसे बड़बड़ाने की नहीं होनी चाहिए। God is not in the repeated prayers. प्रभु बार-बार वही बातों को दोहराने वाली That's what प्रार्थना में नहीं है। Romans 8:26 says. इसलिए रोमियो Likewise, we don't know how to pray. The Holy Spirit help us in groaning and in praying in the Spirit. तो हमें किस रीति से प्रार्थना करनी पता नहीं, लेकिन उसी रीति से पवित्र आत्मा हमारे द्वारा वो गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करता You है। know, don't get into the written prayer. I'm not against it. लिखी हुई प्रार्थना में मत जाओ। मैं उसके That is विरोध में LKG, UKG people they do.
written prayer. वो तो केजी के बच्चे जैसे करते हैं वो करते हैं, जो लिखी हुई प्रार्थना Only पढ़ते हैं। praying for the written prayer. केवल वही जो लिखा That's हुआ what I प्रार्थना said. दोहराते हैं। Prayer is the network that telecasts the heaven on the earth. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रार्थना वो नेटवर्क है जो स्वर्ग से जुड़ती है। Hallelujah. स्वर्ग का पूरा टेलीकास्ट करता है अर्थ का. Amen. Now I want to tell you, when you pray in the spirit, मैं बताना चाहता हूँ जब तुम आत्मा में प्रार्थना करते God हो, gives the thought what to pray, प्रभु वो विचार डालेंगे क्या प्रार्थना करें, what to supplication before the Lord, तो प्रभु के सामने कौन सी विनती what रखनी to है। who and when you pray in the spirit, और जब तुम आत्मा में प्रार्थना करते हो, you will pray for all saints. तुम सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करोगे। In the supplication given by the Holy Spirit. और वो जो पवित्र आत्मा ने जो तुम्हें बातें बताई उसके लिए तुम विनती करोगे। Hallelujah. That is how the prayer will become very powerful. इसीलिए प्रार्थना फिर बहुत सामर्थ्य प्रार्थना बन Now, जाती Paul है। was a man of prayer. He was praying like this in the देखो, spirit. पौलुस एक प्रार्थना करने वाले योद्धा था, Now- वो आत्मा में Now, if प्रार्थना you करता read था। in Philippians, अगर तुम फिलिपियों को पढ़ोगे, chapter 1, 3 to 11, I will not go full. फिलिपियों का पहला अध्याय 1 से 11, Here Paul is praying. यहाँ पे प्रार्थना पौलुस कह रहा है। His prayer is full of thankfulness. वो उसकी प्रार्थना पूरे धन्यवादित हृदय से भरी I हुई है। want you to read in your houses. मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घरों में वचन पढ़ें। This chapter 1, 3 to 11, it talks about thanksgiving prayer. तो ये पहला अध्याय 3 से 11 एक धन्यवाद की He प्रार्थना। prayed for all the Philippians Christians. फिलिपी के जितने भी मसीह लोग थे उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। And this prayer will teach how to pray for India. You remove the Philippines, you put India and pray like that. तो ये प्रार्थना तुम्हें सिखाए कि भारत देश के लिए प्रार्थना कैसे करनी है। तुम फिलीपींस का नाम निकालकर भारत देश के लिए कहो और प्रार्थना करो। तुम प्रार्थना Paul was a man of prayer. पौलुस एक प्रार्थना करने 1 वाला आदमी था। Thessalonians chapter 1, 2 and 3 says, पहला थिस्सलुनीकियों का पहला अध्याय 2 और 3 ऐसा कहता है। he was saying, give thanks to God always in prayer. वो हमेशा कहता है कि परमेश्वर को प्रार्थना में स्मरण करो। We give thanks to God always for all you making mention of you in our prayers. हम प्रार्थना अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण करते हैं और सदा तुमसे विषय तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद Verse करते हैं। 3. Verse 3. तीसरा वचन, Yeah, go ahead. और अपने परमेश्वर और पिता के सामने Now listen. तुम्हारे विश्वास के काम, Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God our Father. हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण Now करते हैं। here Paul is saying, यहाँ पे पौलुस कहता है, I give thanks to God मैं पिता को धन्यवाद देता हूँ always हमेशा, and making mention of you in our prayers. और लगातार धीरता को, तुम्हारी धीरता को लगातार स्मरण करते हुए। Means he's mentioning everybody in prayer. यानी वो अपनी प्रार्थना में हर एक So we learn from the life of Paul to pray every day for everybody. तो हम पौलुस के जीवन से सीखते हैं कि रोज लगातार हमें हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना In करना 1 चाहिए। Thessalonians 2:13, Paul prayed, पहला थिस्सलुनीकियों का 2:13 में पौलुस ने प्रार्थना की। thank God without ceasing. Yeah. इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उस मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया और वह तुम में भी जो विश्वास रखते हैं प्रभावशाली। He's saying, I give thanks to God without ceasing because you heard the word of God. क्योंकि वो कहता है परमेश्वर का मैं धन्यवाद निरंतर करता हूँ। Because the word of the Lord has come to you. क्योंकि प्रभु का वचन तुमने ग्रहण किया। Lastly, 2 Thessalonians 1:11 says, दूसरा थिस्सलुनीकियों का 1:11 कहता है, he prays always. वो हमेशा प्रार्थना करता है, सदा प्रार्थना करता है। Wherefore also we pray always for you. In this word I'm telling you, I pray always for you, that our God would count you worthy of this calling and fulfill the good pleasure of His goodness and the work of faith with power. इसीलिए हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलावट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम
को सामर्थ्य सहित पूरा करे। Come on, somebody say amen for this. कोई तो आमेन कहे। Nothing is impossible for my God. प्रभु, मेरे प्रभु के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। We learn the prayer, dare to pray for great things. तो हमने सीखा कि Like प्रार्थना Elijah. कर एलिया के समान हिम्मत रखे बड़ी बड़ी चीजों के लिए प्रार्थना करने We के have लिए। to pray in faith without doubt. हमें प्रार्थना करना है बिना संदेह And we किए। need to pray like a righteous person. तो हमें एक धर्मी के समान प्रार्थना करनी है। And God is a confidence, is God hears our prayers, answers our prayers because we are His children. और हमारे अंदर एक आशा है कि हम जानते हैं कि हम धर्मी होने के रूप में प्रभु हम उनके संतान हैं और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। Amen. Then the praise and thanks forms in us and we give to Him. और फिर हमारे अंदर से वो धन्यवाद Thank you, और Lord. धन्यवाद और स्तुति निकलती है। And what happens in the times of trouble when we call upon His name, He answers our prayers. और क्या होता है हमारे संकट के समय जब हम उसे पुकारते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनता, विनतियों को सुनता And है। what we learned today is तो आज हमने और क्या in the सीखा? intercession prayer, मध्यस्थी प्रार्थना में Peter and the church was praying, पत्रस और कलीसिया प्रार्थना करते and थे Peter was locked in the prison. और पत्रस बंदीगृह में था God set him free. और प्रभु ने उसे फिर आजाद किया। And this morning, आज की सुबह let us pray like Paul prayed, हम प्रार्थना करेंगे जैसे पौलुस ने प्रार्थना की। praying for all things always. हमेशा हर चीजों के लिए प्रार्थना करना। Mention everything in your prayer. तुम्हारे प्रार्थना में हर चीज को बता वो Let's pray. वर्णन करो। Thank you, Pastor M.K. Jadhav, allowed me to preach in your page. पास्टर एम के जादव, हम आपको धन्यवाद देते कि आपके पेज में आपने हमें And I believe निमंत्रित किया प्रचार करने this के लिए। message will help the nations of the world. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो संदेश है राष्ट्र के लिए सहायता It होगी। will help many Christian believers. बहुत मसीह विश्वासियों को इसके द्वारा सहायता होगी। Let's go and pray. आइए प्रार्थना में चलते हैं। Loving Heavenly Above Father, प्यारे स्वर्गीय पिता, we just want to thank you for this opportunity you gave us to teach the word and intercede. हम धन्यवाद देते हैं ये मौका जो आपने हमें दिया है प्रभु तेरा वचन सिखाने का। Father, we pray that your will be done, your name be glorified, your kingdom come. पिता हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य है, तेरी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। Lord God, we pray and intercede for Mumbai city. प्रभु हम मुंबई शहर के लिए दुआ करते हैं। We pray for Dharavi. धारावी के लिए We मदद pray, Lord, for Kandivali. कांदिवली के हम We दुआ pray करते for हैं। Chandivali. चांदिवली के We लिए प्रार्थना pray for all the suburbs of Mumbai. और प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करते हैं। Suburbs of Mumbai. मुंबई सबब के लिए प्रार्थना करते Lord हैं। God, we pray that your hand will come upon the area where the red alert is there, oh Father. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पे भी रेड अलर्ट है वहाँ पे आपका हाथ Father, लगा we है। intercede, we cry unto you. Lord, you will heal those areas, you will heal those people who are suffering from the diseases. प्रभु हम दुआ करते हैं कि तेरा हाथ उन सारे क्षेत्रों पर आ जाए प्रभु और प्रभु हर एक रोगियों को तू चंगा करेगा। Father, we believe there is going to be a floodgate of healing is open towards the city of Mumbai and India. They will see the glorious power of Jesus Christ moving to every house and every person. और प्रभु हम दुआ करते हैं कि बाढ़ जैसा जो है आकर तेरी चंगाई का सोता हर एक क्षेत्र में जाएगा और वो तेरी चंगाई का अनुभव Father, करेंगे। every man of God, every believers, every Christian, every other community be blessed, be transformed. Listen to the word of the Lord. और प्रभु हर एक विश्वासी, हर एक प्रभु का दास, हर एक जाति के लोग, हर एक अलग अलग कुल के लोग, समाज के लोग प्रभु तेरे वचन को सुने और तेरे वचन के द्वारा परिवर्तित हो जाएं। Eradicate all the virus in our city in the name of Jesus. प्रभु हमारे शहर में जितना भी वायरस है उसे पूरी तरह से मिटा दे। Father, we pray that, Lord, let there be no virus be seen in our city in the name of Jesus. हम दुआ करते हैं कि हमारे शहर में कोई भी वायरस दिखाई न दे। Every unwanted scams be exposed in the name of Jesus. प्रभु जो स्कैम्स है उसे एक्सपोज कीजिए यीशु के नाम Father, में। every lie of the devil in the city be exposed in the name of Jesus. शैतान के जितने भी झूठ है वो खुल जाए यीशु के In नाम the में। name of Jesus, let this lockdown be released and opened up in Jesus' name. यीशु के नाम में ये तालाबंदी खुल जाए। रिलीज Let हो all जाए the यीशु के नाम churches में। be opened in Jesus' name. सारी कलीसियाएं Let खुल every जाएं। prayer house be opened, oh हर God. एक प्रार्थना घर खुल जाए। Every house, prayer house be
made boldly confessed in the name of Jesus. हर एक घर में प्रार्थना शुरू हो जाए। Every man of God be blessed in the city. प्रभु तेरे दासों को तो आशीष Every दे। churches be blessed in the हर एक city. कलीसिया को हम आशीष दे। Everybody's food and water be blessed in the सबके city. भोजन पानी वस्तुओं को आशीष Let there दे। be no lack in the city, Lord. किसी के कोई कमी न हो शहर Every में। confusion, every weakness, every mental bondages be out in Jesus' हर name. एक गड़बड़ी की आत्मा, हर एक तनाव की आत्मा, दबाव की आत्मा निकल आओ यीशु के नाम में। And the blood of Jesus I plead over our city. यीशु का लहू हमारे शहर पे You मांगते take all the glory, Master. सारी महिमा I pray for Pastor Jadhav and ministry, Lord M.K. Jadhav and ministry and his family and all his social work be blessed in the name of प्रभु Jesus. पास्टर M.K. जादव और उसके परिवार के लिए, उसकी सेवकाई के लिए और जो भी उसको सेवा कर रहे हैं, सब चीजों को हम आशीष मांगते हैं। Lord, enlarge their ministry, प्रभु उसकी सेवकाई को बढ़ा, enlarge their social media, उनके सोशल मीडिया को भी तू बढ़ा। and then more platforms be created to preach the word of God. प्रभु तेरे वचन को प्रचार करने के लिए उसको और मंच तू तैयार कर। Thank you for answering our prayers. धन्यवाद हमारी प्रार्थना In सुन। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमेन। Once again, thank you. Shalom. God bless you. Maranatha. Jesus is coming soon. और एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं। शलोम, मरनाता और यीशु शीघ्र आ रहे हैं। God bless you. प्रभु तुम्हें आशीष दे।